الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. جی طالبات، جو ہمارا پچھلا درس تھا وہ ہے الف مد آ، یہ ہمارا پچھلا درس تھا. تو اس سے پہلے اب یہاں پر کتنی طالبات حاضر ہیں؟ 4 طالبات حاضر ہیں. تو دیکھیے، جو پچھلا درس تھا ہمارا الحمدللہ سب کو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی میں طالبات سے پوچھ رہی ہوں. ناظمہ اور یہ سعدیہ، صفیہ، حسینہ، جی میم. جی الحمدللہ. آپ لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں میم. ہاں وہی، کیونکہ آج ہم نیا سبق شروع کرنے والے ہیں، تو اسی لیے اگر میں کسی سے کچھ سوال کروں تو آپ بول سکتے؟ جی میم. اچھا یہاں پر دیکھیے، آپ لوگوں کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. آپ لوگوں کی آواز تو دیکھیے جو میم اب آ رہی میم. ہاں اب میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی میم آ رہی میم. ہاں تو دیکھیے، یہ دیکھیے پیش کا سبق ہے. تو آپ لوگوں کو کیا ہے، یہاں پر پیش اور زبر لگا ہوا نہیں ہے، آپ کو پیش لگا کر پڑھنا ہے. یہاں پر جو حرف ہے تو اس کو دیکھیے آپ. ناظمہ، جی ناظمہ کون ہے وہ پڑھیے، پہلی والی لائن پڑھیے، پیش لگا کر پڑھیے. اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ جی میم. کل، پل، تل، جل. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ. تو اسی طرح دیکھیے اور کون ہے؟ صفیہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوسری لائن جو ہے نا وہ پڑھیے آپ، پیش لگا کر پڑھیے اس کو. دم، تم، گم، سم. جی ماشاء اللہ. اور کون ہے؟ سعدیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسری لائن جو ہے، تیسری لائن آپ اس کو پیش لگا کر پڑھیے. جی. پر، سر، گر، در. صحیح پڑھے کیا میم؟ جی ایک مرتبہ پھر پڑھیے. جی. پر، سر، گر، در. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ. جی آپ نے جزاک بھی اللہ. اچھا پڑھا ماشاء اللہ. اب اس کے بعد جو ہے ثنا. ثنا کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ چوتھی لائن پڑھیے. جی میم. اڈ، گڈ، مڈ، تڈ. یہ آپ جو پڑھے نا ماشاء اللہ صحیح پڑھے، مگر اس میں دیکھیے آپ کو اس طرح پڑھنا ہے، اڑ، گڑ، مڑ، تڑ. وہ جو آپ پڑھے وہ ڈال کی آواز پڑھے آپ. جی میم. ڈال اور اڑے میں ذرا فرق ہے. تو یہ کیا ہے، جی. وہ آپ پڑھیں گے تو وہ ڈال ہو جائیں گا. تو اس طرح پڑھنا ہے آپ کو، اڑ، گڑ، اڈ، مڑ، اڈ، گڑ، مڈ، چڑ. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. ماشاء اللہ، آپ کو بارک اللہ فیک. جی اس کے بعد حسینہ. حسینہ کون ہے پڑھیے، 5ویں لائن پڑھیے آپ. جی میم. لام واو پیش، واو واو پیش مو.
जी बढ़िए। जी मैम, लाम वाव पेश लू, दू, वो, सु। जी माशाल्लाह। अच्छा, जो हमारा और भी पिछला दर्स है उसमें से मैं पूछूंगी। जी नाजिमा बोलिए, ये जो 4 हरफी अल्फाज ना आपके सामने, पेज नंबर क्या, सफा नंबर क्या है? 14, सफा नंबर 14 पे आप देखिए। आप पढ़िए, पहली लाइन पढ़िए आप। नाजिमा। जी मैम। दादा, सादा, लावा, मादा। जी आखिरी लाइन, सबसे आखिरी लाइन जो अलीफ मद की है वो पढ़ के सुनाइए आप। आता, आटा, आया, आना। जी उसके बाद सफिया पढ़िए, दूसरी लाइन पढ़िए सफिया। जी मैम। नाना, जाना, पाना, लाना। जी माशाल्लाह बारकल्लाह। अच्छा, उसके बाद कौन है? सना, सना पढ़िए, तीसरी लाइन पढ़िए। पाता, काता, गाता, लाता। अच्छा, उसके बाद बारकल्लाह, अच्छा पढ़े आप भी माशाल्लाह। हसीना पढ़िए, उसके बाद चौथी लाइन पढ़िए। जी मैम, काला, जाला, ताला, काला। जी मैम, सुने आया मैम? मैम सुने आ रहा मैम मेरी आवाज? जी सुनिए, इंशाल्लाह अच्छा पढ़े आप। उसके बाद जी कौन मैम। पढ़ना है? जी और कौन है? कौन सी तालिबा बाकी रह गई है? सफिया पढ़ दिए। मैम पढ़े मैम। अच्छा, यास्मीन पढ़िए, चौथी लाइन पढ़िए आप। जी जी मैम पढ़ी। हेलो। जी पढ़िए। दादा, सादा, लावा, लावा, मावा, नाना, जाना, पाना, लाना, पता, ये पता, आखिरी लाइन पढ़िए आप, आखिरी लाइन। आता, आटा, आया, आना। जी बारकल्लाह, माशाल्लाह अच्छा पढ़े आप भी। अब उसके बाद देखिए, और एक सवाल करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आज का जो सबक है वो हम पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए, 2 हर्फ को मिलाकर पढ़ने का तरीका क्या था हमारे पास? 2 हरफों को किस तरह इसमें मिलाकर पढ़ा जाता है? हसीना पढ़कर बताइए आप। अलिफ बा अब, अलीफ बा रा नहीं। बा रब। जी ये उर्दू है, सर उर्दू। अलिफ बा जबर अब, अलीफ बे जबर अब, तो इसको किस तरह बे पढ़ेंगे बे हम? जबर अब, रा, हाँ, रे बे जबर, पढ़िए रे बे पढ़िए। जबर रे बे जबर रब। दाल लाम जेर दिल, जी दाल नून जेर दिन, जी दाल मीम पेश दुम। जी माशाल्लाह, अच्छा बारकल्लाह। जी तो इसी तरह क्या है, हम 2 अल्फाज को हुरूफ तहज्जी में दो हुरूफ को क्या है मिलाकर किस तरह पढ़ेंगे? अब जैसे अलीफ बे जबर अब, इसी तरह क्या है अलीफ पे जबर अप, अलीफ पे जबर अत। तो इस तरह क्या है, कौन से भी 2 हरफों को क्या है मिलाकर क्या है इस तरह से पढ़ा जाता है।
तो इसी तरह क्या है रे बे जबर रब, तो यहाँ पर क्या है जबर लगाकर दो हरफों को किस तरह मिलाया गया वो बताया गया है। तो इसमें क्या है कौन से भी हर्फ को यहाँ पर मिलाना है, तो मिलाने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, जमा की अलामत, यानी जमा की निशानी जो है प्लस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वो इस्तेमाल की जाती है। तो अलीफ प्लस बे इज इक्वल टू क्या होगा अब, इसी तरह रे प्लस बे इज इक्वल टू रब, दाल प्लस लाम इज इक्वल टू दिल। तो इस तरह क्या है दो अल्फाज तो इस तरह दाल नून जेर दिन, दाल मीम पेश दुम, तो इस तरह क्या है ये दो अल्फाज को क्या है मिलाकर इस तरह से पढ़ा जाता है, जबर लगाकर जेर लगाकर और पेश लगाकर। अब देखिए नाजिमा जी, नाजिमा पढ़कर बताइए तीन अल्फाज को किस तरह से मिलाया जाता है। जी मैम। दरख सॉरी वरख, दरस, रिस्क। जी वैसे नहीं पढ़ना है, वो रेखा जो है ना उसको क्या है वरख नहीं पढ़ेंगे अपन, ऐसा वर्क दर्स रिस्क रूम उड़ा ऐसा। जी तो मैम। वरख पढ़ेंगे तो दो हरफों पर जबर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ एक जबर से दो अल्फाज को मिलाकर पढ़ना है। तरीका क्या है वाव प्लस काफ इज इक्वल टू क्या है वर्क, दाल प्लस रे प्लस सीन इज इक्वल टू दर्स। तो आप लोगों की याद दिलाने के लिए एक मरतबा फिर भी दोहराया जा रहा है, इसलिए क्योंकि पूरी तौलिबात को ये सबक समझ में आया या नहीं आया ये देखने के लिए मैंने आज की क्लास में क्या है मतलब पिछला सबक दोहराया जा रहा है। तो देखिए तो इसको क्या है वर्क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वाव रे काफ जबर वर्क, इसी तरह दर्स रे काफ जबर रिस्क। अब उसके बाद मीम पेश रूम, उसके बाद अलीफ तो अलीफ प्लस रे प्लस अलीफ इज इक्वल टू उड़ा। तो ये तीन हरफी अल्फाज को मिलाने का तरीका था। तो हम मिलाकर कौन से भी हर्फ को किस तरह मिलाकर पढ़ेंगे, बीच में क्या है जमा के अलावा लगाकर क्या है इस तरह से पढ़ेंगे। हम कौन से भी तीन अल्फाज को अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या है इस तरह से पढ़ा जाएगा, जैसे वर्क पढ़े, दर्स पढ़े, रिस्क पढ़े। आप इसी तरह क्या है अब हम पढ़ते हैं क्या है और की कोई तालिबा मिसाल दे सकती जैसे तीन अल्फाज की इस किताब के अलावा। जी 10 तालिबात में से कोई भी 9 तालिबात में से कोई भी क्या है तालिबा एक मिसाल दे सकती तीन हरफी अल्फाज की। जी मैम। बर्फ। जी माशाल्लाह बर्फ, बर्फ भी आता है, जिस तरह दर्स हम पढ़ रहे हैं इसी तरह क्या है बर्फ है। तो माशाल्लाह आप क्या है अच्छा दिए जी। जी किसने मिसाल दी, जी सादिया बोल रही हूँ मैम। जी कौन है, सादिया। सादिया, अच्छा बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह अच्छा दिए आप। और भी कोई तालिबा है जो मिसाल दे सकती। दर्द। जी दर्द भी आया, बारकल्लाह। कौन है आप, कौन है, सना मैम। जी बारकल्लाह। तो ऐसा क्या है देखिए दर्द है, बर्फ है और क्या है बहुत सारी मिसालें हैं। तालाब। जी तालाब। तालाब, तालाब। तलब, तलब, सबर, जो आप तलब बोल रहे शायद, लाम बे, ये तीन अल्फाज। तो क्या है इसका मतलब क्या हो जाएगा पढ़ने में, इसको किस तरह पढ़ेंगे तलब। जी समझे। तो वो है। आप देखिए उसके बाद ये तो दो हरफी थे, अब ये तीन हरफी थे। इसके और भी मिसालें हैं, इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से आपको और भी क्या है इजाफा होने के लिए मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों को बताऊंगी, मिसालें आप लोगों को बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि चार हरफी मिसालें किस तरह होती है, दो हरफी मिसालें किस तरह होती है,
और 3 हरफी मिसालें और 5 हरफी मिसालें किस तरह होती है, इंशाअल्लाह कल आपके सामने तफसील से रखा जाएगा, क्योंकि ये इस किताब के अलावा भी दूसरे किताब में क्या है किस तरह की मिसालें आती है और हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल में जो गुफ्तगू रोजमर्रा जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें किस तरह क्या है अल्फाज और हर्फ इस्तेमाल होते हैं। इंशाअल्लाह कल आप लोगों को मैं बहुत सारी मिसालें देकर इंशाअल्लाह वो क्लास चलेंगी। तो देखिए अक्सर तालिबात को भी माशाअल्लाह बारकल्लाह मतलब सबको समझ में आया है कि किस तरह से क्या है पढ़ाया गया। जी तो देखिए अगर आप लोगों को कुछ भी सवाल है या डाउट है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब पिछले दरसों में तो कुछ भी किसी को सवाल नहीं है ना? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अगर किसी को कुछ है नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछिए, बिला झिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि इल्म में नहीं शर्माना चाहिए। इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लास में नहीं समझ में आ रहा तो क्लास के अलावा भी आप क्या है सवाल कर सकते हैं, ठीक है। जी तो देखिए आज का हमारा जो सबक है वो क्या है, सफ़ा नंबर क्या है 21 पर देखिए जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हे की मिसाल, यानी हे से 2 चश्मे वाले हे को भी क्या है लिखा जाता है हुर्फ़े तहज्जी में। तो इस किताब में क्या है यहाँ पर लिखा हुआ नहीं पाया गया। तो अब ये जो 2 चश्मे वाला हे है वो किस तरह से बनता है हम आपको आज क्या है आज के सबक में हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये 2 चश्मे वाला जो हे है ना वो किस तरह बनता है, आपको यहाँ पर इस सफ़े पे आप देखिए, यहाँ पर ये जो डॉट डॉट दिया गया है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो है ना इससे पहले कौन सा भी हर्फ लगाकर प्लस की अलामत यहाँ पर लगाई गई है और हे से मिलेंगे, सिर्फ गोल वाले हे से अगर हम मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 अल्फाज मिलकर एक 2 चश्मे वाला हे बन जाएगा। समझ में आ रही बात, मतलब क्या है उसको इस तरह से पढ़ेंगे। आप देखिए फिर यहाँ पर है मिसाल, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए बे प्लस हे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भे हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये पूरा क्या है एक एक इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, एक ही माना जाएगा इसको, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे तो इसको एक लफ्ज, अब जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब पिछले वाला दर्स आप यहाँ देखिए सफ़ा नंबर 22 पर देखिए, तो यहाँ पर जो है ना बे 2 चश्मे वाला हे और रे ये 3 मिलकर क्या होगा, क्या है भर हो जाएगा। यहाँ पर ये जबर की मिसाल है, भर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना बे और ये जो है वो एक ही हर्फ है। जी समझ में है आपको बात? ये 2 मिलकर क्या है एक ही क्या है हर्फ माना जाएगा। उसके बाद रे ये अलग है। बताओ ना बाजू, जी स्क्रीन बताओ ना बाजू। नहीं आ रही मेरी स्क्रीन? जी नहीं आ रही बाजू। जी तमाम तालिबात के पास नहीं आ रही? जी आ रही मैम। आ रही मैम। हाँ जिसके पास नहीं आ रही उनका प्रॉब्लम होगा। देखो तो यहाँ पर देखिए ये जो भर है फिर थल है, तो ये क्या है जुमले में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक लफ्ज जब बनाया जाता है तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो हमारा पिछला दर्स है वो क्या है, ये है। तो यहाँ पर सिर्फ किस तरह से ये क्या है लफ्ज के साथ मिलकर किस तरह आवाज आती है उसकी और किस तरह इस्तेमाल में उसको लाया जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। तो आप देखिए कौन से भी हर्फ को लगाकर क्या करेंगे हम, कौन से भी हर्फ के साथ हम उसको लगा के क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो देखिए बे प्लस हे इज इक्वल टू भे, पे प्लस हे इज इक्वल टू भे, ते प्लस हे इज इक्वल टू थे, ते प्लस हे इज इक्वल टू ठे, जीम प्लस हे इज इक्वल टू झे, जीम प्लस हे इज इक्वल टू छे। ठीक है, तो इस तरह से है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की मिसालें इस तरह से पढ़ी जाती है। फिर देखिए यहाँ पर दाल प्लस हे इज इक्वल टू दे है, दाल प्लस यहाँ पर डाल आना चाहिए था, यहाँ डाल का वो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ नहीं है। तो डाल प्लस हे इज इक्वल टू क्या होगा ढे। उसके बाद अड़े प्लस हे इज इक्वल टू ड़े है। उसके बाद काफ प्लस हे इज इक्वल टू के है। उसके बाद गाफ प्लस हे इज इक्वल टू गे है। लाम प्लस हे इज इक्वल टू ले है। तो मतलब क्या है यहाँ पर ये पूरे इस्तेमाल किए गए। अगर अब हम जुमले में आप देखिए, अब इसको जबर भी लगा के पढ़ सकते हैं हम, जेर भी लगाकर पढ़ सकते हैं हम, और पेश भी लगाकर पढ़ सकते हैं।
तो इस तरह के क्या है यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर ये समझाया गया है कि दो चश्मे वाले है के साथ खाली है के साथ अगर हम कौन सा भी लफ्ज बनाकर अगर हम पढ़ेंगे तो वो क्या आएगा, दो चश्मे वाला है इस तरह से बनेगा, बल्कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? जी मैम। ठीक है, तो कोई एक तालिबा ये तमाम मिसालें पढ़कर सुनाइए। बे भे बे हे 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 कौन पढ़ना चाह रहे हैं, मुझे नाम बताइए। यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। जी वालेकुम सलाम, पढ़िए यास्मीन पढ़िए। बे फे ते ते जे से पे। रुकिए, एक मिनट रुकिए, माशाल्लाह अच्छा पढ़े आप। इसको अलग अलग करके जब मिला के हम पढ़ते हैं तो किस तरह पढ़ेंगे, यानी बे जी दे जी अभी मैंने आप लोगों के सामने पढ़ने का तरीका बताया था, किस तरह पढ़ेंगे हम इसको। अब ये अलग अलग है, यहाँ बे पर हे अलग है, बे अलग है, तो किस तरह पढ़ेंगे। बे प्लस है इक्वल टू है बे। पे प्लस है इक्वल टू पे। ते प्लस है इक्वल टू ते। टे प्लस है इक्वल टू टे। जी प्लस है इक्वल टू जे। जिम प्लस है इक्वल टू जे। जी जी बारकल्ला, रुकिए, माशाल्लाह बारकल्लाह, आप अच्छे तरीके से पढ़े माशाल्लाह। जी और कोई तालिबा पढ़ रही थी आपके साथ, दोनों की आवाज आ रही थी, वो कौन थे? जी मैम। जी आपका नाम बताइए। सना मैम। जी पढ़िए, आप यहाँ से पढ़िए। डाल प्लस हे इज इक्वल टू ढे। दाल है ना, ये दाल के बाद आना। जी मैम। दाल प्लस हे इज इक्वल टू ढे। जी दे डाल है। प्लस डाल प्लस हे इज इक्वल टू ढे। जी अड़े प्लस हे इज इक्वल टू अड़े। हम्म काफ प्लस हे इज इक्वल टू के। जी गाफ प्लस हे इज इक्वल टू गे। लाम जी प्लस हे इज इक्वल टू ले। जी तो ये क्या है, अलग अलग है। अब देखिए, अब उसके बाद जो है ना, हम जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ सफा नंबर 22 पर देखिए। सफा नंबर 22 निकालिए। सफा नंबर 22 आपको नजर आ रहा है मेरा स्क्रीन? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो देखिए, अब इसमें क्या है, पहली वाली जो लाइन है उसको क्या है, जबर लगाकर पढ़ेंगे। जैसे देखिए, अब इसको किस तरह पढ़ेंगे, भर भर। उसके बाद क्या है, भर, हल, लठ, ढक, छत। ठीक है, ये पहली वाली लाइन को हम क्या कर रहे थे, जबर लगाकर पढ़े। अब जो दूसरी वाली लाइन है हमारे पास, वो क्या है, घी। इसको क्या है, जेर लगाकर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जेर लगा के पढ़ेंगे। जेर लगा के पढ़ेंगे। जैसे घी, भी, छिन, फिर, गिद्ध। ठीक है, तो ये क्या है, जेर लगाकर पढ़ा गया है इसको। यहाँ पर इसी तरह क्या है, हम पेश लगाकर पढ़ेंगे। जैसे खुल, घुल, कुछ, मुझ, तुझ। ठीक है, तो ये जो नीचे भी जो मिसालें आपको दी गई है वो सेम ऊपर की ही मिसालें हैं, तो मगर क्या करें, यहाँ पर मिलाकर बताया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर एक मर्तबा मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, ये क्या है, पहले वाले को जबर लगाकर हम किस तरह पढ़े, जैसे भर, थल, लठ, ढक, छत, घी, भी, छिन, फिर, गिद्ध। इसी तरह यहाँ पर पेश लगाकर पढ़े। जैसे क्या है, खुल, काफ है लाम पेश खुल, गाफ है लाम पेश घुल, काफ जीम है पेश कुछ, मीम जीम है पेश मुझ, ते जीम है पेश तुझ। इसी तरह अगर हम जबर लगाकर पढ़ेंगे तो बे है रे जबर भर, ते है लाम जबर थल, लाम टे है जबर लठ, डाल है काफ जबर ढक, चीम है ते जबर छत,
उसी तरह क्या है, अगर हम जेर लगा कर पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, गाफ हे ई जेर घी, बे हे ई जेर भी, छीम हे नून जेर छिन, पे हे रे जेर फिर, गाफ दाल हे जेर गिद्ध। तो इस तरह से पढ़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर अलग अलग दिया गया है ताकि तौलिबात को ये समझ में आए कि किसको जबर लगाकर पढ़ना है, किसको जेर लगाकर पढ़ना है और किसको पेश लगाकर पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है, ये बताया गया है। तो जी आप देखिए, मैं एक एक लोगों से क्या है पूछूंगी। जी एमडी आयशा कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप पहली लाइन पढ़िए। भर तल इसको क्या पढ़ेंगे, जो मैं इशारा नहीं हूँ आप देखिए। जी तल क्या लगा कर पढ़ेंगे इसको? जबर जी जबर लगा कर पढ़ेंगे इसको। तो इसी तरह इसके बाद वाला लफ्ज पढ़िए आप। लट लुट्टू नहीं लट आप सही पढ़े, बराबर पढ़े आप। देखिए आप हाँ, कैसा पढ़िए। लट जी लट। अब उसके बाद कौन है? मोहम्मद सफिया। आप पढ़िए क्या है, मोहम्मद सफिया कौन है? जी सफिया मौजूद है? जी जी ये पढ़िए। सफिया हाजिर हैं? जी सफिया के बाद वाले कौन है? नाजिमा। आप पढ़िए, ये क्या है? जी मैम, स्क्रीन। एक मिनट। जी ये पढ़िए। हे या जबर बह, बे बे हे या जबर बह। नहीं नहीं, आप देखिए, आप सोच कर बोलिए। कहाँ पे मैम? यहाँ पर जी मैम, बे हे या जबर, जबर ही लगाना है ना मैम? नहीं जी जबर नहीं। आप आपको क्या बोला गया, ये पहले काम करने वाले भी अच्छे लोग हैं अब बेचारे। ये पहली दूसरी और तीसरी लाइन जो ऊपर की थी ना, ये पहली दूसरी और तीसरी, ये 3 लाइनों पर क्या है, इसको जबर लगाना है तो फिर इसको पेश। यहाँ पर आपको क्या है, एक मतलब रहनुमाई के तौर पे क्या है आपको बताया गया। अब यहाँ पर जो नीचे है ना, नीचे की लाइन में यहाँ पर क्या है, अल्फाज को क्या है ऊपर नीचे दिया गया है ताकि आप पहचान सकें कि इसको जबर लगाना है या जेर लगाना है। ये तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो भी मौजूद है वो कहाँ की लाइन में मौजूद थी, जेर की लाइन में मौजूद थी। आप देखकर क्या है इसको कैसे पढ़ेंगे, बे हे ई जेर भी। जी समझ में आया? जी मैम। हाँ तो इस तरह। अब ये भी है, अब ये क्या है बोलिए? ढक है मैम, ढक है मैम, जबर। ढक है तो इसको क्या लगाना है, जबर लगाना है। तो आपको अगर पढ़ने में दुश्वारी हो तो आप यहाँ की लाइन देख लीजिए। अब ये ढक लफ्ज मौजूद है तो यहाँ पर कौन सा क्या लफ्ज लगाया गया था, यहाँ पर क्या हरकत लगाई गई थी, जबर लगाया गया था। तो डाल है का जबर ढक, तो इस तरह पढ़ा गया। ये समझते क्या है आप यहाँ पर पढ़ना है। जी नेक्स्ट तालिबा कौन है? जी
मैम सादिया बोले आप? जी सादिया बोली। सेकेंड लाइन पढ़ू क्या मैम? जी सेकेंड लाइन पढ़िए। जी। छिन्न, घुल, जी माशाल्लाह अच्छा पढ़े। ये बोलिए। कुछ। जी माशाल्लाह बारकल्लाह अच्छा पढ़े आप। जी मैम ये सेकेंड लाइन थर्ड वन क्या है मैम? ये बोल रहे हैं आप? जी जी ये ना, जी जी हाँ वही। देखिए आप दूसरी लाइन में यहाँ पर मौजूद है ये, तो इसको जी क्या पढ़ेंगे? जेर लगाकर पढ़ना है। तो किस तरह पढ़ेंगे आप? कोशिश करिए। फिर जी फिर बारकल्लाह। तो इस तरह क्या है, ये लाइन से देखते हुए हम क्या करना है, ये लाइन, ये इसमें मौजूद अल्फाज को पढ़ना है हमें, क्योंकि इससे हमें क्या है रहनुमाई मिलती है कि किस तरह से पढ़ना है। तो इससे क्या है सीख सकते हैं। अब इसके अलावा भी मौजूद बोलता, अब हम क्या है इसको जुमले में जो है ना आवाज नहीं आ रही है। जी आ रही है अब आवाज मेरी? जी मैम पढ़े हम। अब यहाँ पर अब अक्सर तालिबात का ये सवाल होगा, तो अक्सर तालिबात का ये सवाल होगा कि अब हम यहाँ पर देखकर क्या है पढ़ेंगे, मगर कल जो पढ़ेंगे सबक यानी किताबों में हम अगर पढ़ेंगे तो उस वक्त वहां पर जबर लगाना जेर लगाना समझ में आता बोल, तो उस वक्त अगर अब जुमला मौजूद है, आप देखिए जैसा क्या है, ये गिलास, अब यहाँ पर ये लफ्ज आया। अब मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको, ये गिलास डैश कर दो बोल, तो डैश दो बोल तो क्या लगाएंगे? अब ये जो मैं आपको इशारा करके बता रही हूँ, ये पहला लफ्ज, उसको क्या लगा कर पढ़ेंगे? ये गिलास डैश दो बोल तो क्या करेंगे? भर दो। भर लगा के भर दो। तो इस तरह क्या है, जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं अल्फाज को, तो उससे खुद ब खुद हमें क्या है उर्दू से हम पहचान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसी तरह क्या है, हम इसको जबर लगाएंगे या जेर लगाएंगे, आपको जुमला पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। ठीक है, आपको मुश्किल नहीं होंगी उस वक्त। अब सिर्फ यहाँ पर आपको क्या है इस तरह लगाने से ये लफ्ज इस तरह बनता है, यहाँ पर बताया जा रहा है, और ये रहनुमाई के लिए यहाँ पर जबर जेर और पेश इस तरह बताया जा रहा है। तो आपको क्या है खुद ब खुद क्या है जुमले में जबर जेर पेश लगाना है, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और एक मैं मिसाल देती हूँ, देखिए आप। अब जैसे दरवाजा डैश हो गया बोल तो क्या पढ़ेंगे आप? खुला, क्या क्या पढ़ेंगे? खुल गया। खुल गया, खुल गया। डैश गया बोल तो खुल गया। गया। तो आप यहाँ पर ये लफ्ज भी क्या है जुमला भी बन जा रहा है। तो इस तरह से क्या है हम इसको क्या पढ़ेंगे? खुल पढ़ेंगे। अब इसी तरह क्या है, अनार डैश दो बोल तो अनार भी दो। हाँ अनार भी दो, इस तरह है। अब उसके बाद क्या है, ये देखिए आप इसको है नहीं, अब जुमले में इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या है, हमारे घर पर डैश है, तो क्या बोलेंगे? छाता, छत छत बोलेंगे इसको। हमारे घर पर क्या है? छत है, छत है। छत है। हमें समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, ये देखिए आप, ये क्या है, खाने में डैश मिलाओ बोल, तो ये क्या है? इसको किस तरह पढ़ेंगे? घी मिलाओ। घी मिलाओ। तो ये क्या है, हमें उर्दू पढ़ने के वक्त में मैं आपको जिस तरह जुमला बता रही हूँ आपको खुद समझ में आएगी। यहाँ पर मैं जेर लगाऊंगी या जबर लगाऊंगी या पेश किस तरह लगाने से क्या है जुमला सही होगा, आप खुद ब खुद पहचान कर लगा सकते हैं। तो ये है। और क्या है, ये देखिए
अब ये देखिए इसको किस तरह से, अब देखिए अब यहाँ पर मुझे और डैश पैसे दो बोल तो, कुछ पैसे हाँ मुझे पैसे दो। और कुछ पैसे दो बोल जैसा, ठीक है, मुझे और कुछ डैश कुछ की जगह पैसे पे क्या है, दो। कुछ पैसे दो, तो इस तरह से आएगा। तो ये देखिए आप डैश पर भरोसा, मुझ पर डैश पर भरोसा पर करिए, मुझ मुझ पर भरोसा, मुझ आप पर भरोसा करो। करिए। आज हाँ तो ठीक, इस तरह से हम क्या है पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, ये तमाम मिसालें यहाँ पर इस तरह बताई गई है। तो देखिए और एक ये है छिन, तो क्या है, मुझसे मेरा पेन डैश हो गया बोल तो, छीन छिन गया। जी छिन बारह गया। तो मुझसे मेरा पेन छिन गया यानी गुम गया, गया। चले गया मेरा पेन मेरे पास से, तो इस तरह से है। फिर उसके बाद हम डैश कल आएंगे, फिर फिर आएंगे। फिर कल आएंगे, आएंगे। हम कल फिर कल आएंगे, हम आएंगे। फिर कल आएंगे, तो इस तरह से है। आएंगे। तो ये मिसालें हैं। तो आज का जो हमारा सबक था वो ये था कि दो चश्मे वाले हे को किस तरह से मिलाकर पढ़ने से किस तरह आवाजें आती है, और जबर लगाने से किस तरह क्या जुमला बनता है, एक हर क्या है एक लफ्ज बनता है, और जेर लगाने से किस तरह एक लफ्ज बनता है, और पेश लगाने से किस तरह लफ्ज बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज के सबक में हमने समझ लिया। तो आप लोगों को समझ में आया? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए उसके बाद ये हमें क्या करना है, देखिए तालिबात के हमें क्या है जल्द से जल्द ये पूरी किताब को अच्छे से क्या है समझकर जल्दी क्या है खत्म करना है। उसके बाद दूसरा नया हिस्सा भी शुरू करना है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा ना, दुश्वारी इंशाल्लाह मैम। जी आप लोगों को दुश्वारी नहीं है ना समझने में सबक? नो मैम। अगर कुछ दुश्वारी है तो आप बोलिए, थोड़ा थोड़ा सबक पढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं मैम। हाँ तो अब देखिए नेक्स्ट जो सबक है आज का, ये सबक भी पढ़ाऊं? पढ़ाओ। जी जी आज का भी ये सबक भी आप पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद क्या है इंशाल्लाह कल जो है ना छुट्टी रहेंगी आप लोगों को, तातील रहेंगी, तो कल के उसमें आप क्या है ये तमाम अजबाक को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद जब चारशंबे के दिन क्लास होंगी तो इंशाल्लाह उस वक्त आपको पूछा जाएगा, आज जिस तरह सवालात किए गए ना, आपको उस वक्त क्या है चारशंबे के दिन भी अगर सवालात किए जाएंगे ना तो तब आपके सब से क्या है ठीक है। आज का जो अब सफा नंबर 23 पे जो सबक है वो क्या है, वाउ पेश यानी वाउ है ना पेश मारूफ के साथ, मतलब क्या है मारूफ और मजहूल। अरबी में किस तरह मारूफ पढ़ा जाता है हर्फ को इस तरह से कि यहाँ पर उर्दू में मारूफ और मजहूल दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर लाम प्लस वाउ, तो यहाँ पर मारूफ तरीके से पढ़ना है हमें, जैसे लूट, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे हम, लाम प्लस वाउ लूट प्लस ते इज इक्वल टू लूट, इस तरह पढ़ेंगे हम। तो अब देखिए यहाँ पर जो सबक है सीन वाउ टे, तो ये किस तरह होगा, सीन प्लस वाउ प्लस टे इज इक्वल टू सूट, बे प्लस वाउ प्लस टे इज इक्वल टू बूट। तो आज का जो हमारा सबक है क्या है, वाउ को जो है ना वाउ को पेश लगाकर किस तरह से मारूफ तरीके से पढ़ा जाता है, इसको वाउ को पेश लगाकर किस तरह से क्या है मारूफ तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है जी। समझ में आ रही मेरी बात? जी बाजी। तो देखिए अब यहाँ पर किस तरह पढ़ना है। अगर मैं आप लोगों को एक बात ये बताती हूँ कि मारूफ और मजहूल किस तरह पढ़ा जाता है, देखिए और एक है हमारे पास सबक, वो है मजहूल। मजहूल भी यहाँ पर बताया गया है आपको, यहाँ पर क्या है मीम वाउ लाम, ये क्या है मजहूल के साथ पढ़ना है, जैसे मोल तोल गोल खोल। तो इसको क्या है हम कैसे पढ़ रहे हैं, आपको मैं बताई थी कि अरबी में जो है ना अक्सर अरबी में क्या है मारूफ तरीके से ही पढ़ा जाता है हुरूफ तहज्जी को, और लेकिन उर्दू में जो पढ़ा जाता है वो मजहूल के साथ पढ़ा जाता है, अली बे पे ते, ऐसा इस तरह से हम क्या है इस लहजे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ देखिए मोल तोल गोल खोल घोल ढोल गोल, इस तरह से हम क्या है इस तरह मजहूल से पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर मारूफ भी पढ़ा जाएगा, मारूफ को किस तरह किस अंदाज में पढ़ रहे हैं हम,
जैसे मारूफ को हम पढ़े अभी के लूट, सूट, बूट, कोट, कूट, ये और एक एक अगर हम मारूफ तरीके से मजहूल तरीके से पढ़ेंगे तो कोट, होट, नोट ऐसा होगा। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, मारूफ है। मारूफ को किस तरह से पढ़ेंगे, जैसे सूट, बूट, सीन प्लस वाव प्लस टे इज इक्वल टू सूट, बे प्लस वाव प्लस टे इज इक्वल टू बूट, लाम प्लस वाव प्लस टे इज इक्वल टू लूट, काफ प्लस वाव प्लस टे इज इक्वल टू कूट, काफ वाव टे कूट। उसके बाद हे वाव काफ क्या होगा, हुक। इसी तरह कूक, काफ प्लस वाव प्लस काफ इज इक्वल टू कूक। उसके बाद ते ही ये जो है ना एक ही लफ्ज है, ठीक है। थे हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे इसको हम, अब इसको पेश लगाकर पढ़ना है ना हमें। ते है पेश, ते है वाव, ते है प्लस वाव प्लस काफ इज इक्वल टू क्या होगा, थूक, ठीक है। उसी तरह क्या है, बे है प्लस वाव प्लस काफ इज इक्वल टू भूख। इसी तरह क्या है, तूल, ते प्लस वाव प्लस लाम इज इक्वल टू तूल, बे है प्लस वाव प्लस लाम इज इक्वल टू भूल, पे है प्लस वाव प्लस लाम इज इक्वल टू फूल। इसी तरह क्या है, दाल है प्लस वाव प्लस लाम इज इक्वल टू क्या होगा, धूल। इसी तरह नूर, नून प्लस वाव प्लस रे इज इक्वल टू नूर, ते प्लस वाव प्लस रे इज इक्वल टू तूर, दाल प्लस वाव प्लस रे इज इक्वल टू दूर, स्वाद प्लस वाव प्लस रे इज इक्वल टू सूर। तो जी, तो ये क्या है, कौन से अंदाज में पढ़ रहे हैं हम, ये आज का जो सबक पढ़ रहे हैं हम। जी बोलिए। पेश लगाकर पेश आया, और कौन से अंदाज में पढ़े, बस तो मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। जी, मारूफ के तरीके से किस तरह पढ़ेंगे, सूट, कूट, बूट, लूट पढ़ेंगे। मजहूल किस तरह पढ़ेंगे, मजहूल के तरीके से, जैसे गोल, मोल, तोल ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि उसको भी क्या है, पेश लगाया जा रहा है, मगर वो क्या है, मजहूल तरीका है। अब यहाँ पर देखो पेश के आवाज गोल आती है, सूट, बूट, सूट, तो ये क्या है, मारूफ तरीके से पढ़ रहे हैं हम, तो एकदम इसकी आवाज क्या है, गोल आ रही। तो ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया है अब ये सबक? जी मैम। नंबर 22 और सफा नंबर 21, ये तीन क्या है, अच्छी तरीके से क्या है, मश्क कर कर और क्या है, को मिलकर क्या है, आप फोटो लिए, तो आपको क्या चाहिए कि ग्रुप में क्या है, आप उसकी फोटोज लेकर सेंड करिए। आपका ये होमवर्क है, आप इस तरह से करेंगे तो क्या है, आपको जल्दी उर्दू सीखना आ जाएगा, ठीक है। जी तालिबात, आ रही मेरी आवाज? फिर से बोलिए बाजी, ब्रेक हो रहा आपकी वॉइस, नहीं समझ में हुआ। अच्छा, तो देखिए, आपको सफा नंबर 21, 22 और 23 ये क्या है, तीनों को अच्छे से मश्क कर कर लाना है और अपनी नोटबुक में लिखकर क्या है, सेंड करना है आपको, उर्दू लैंग्वेज ये जो ग्रुप है ना उसमें, ठीक है। जी आप में भी क्या है, आपका ये होमवर्क है, आप इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, मैं देखूं या ना देखूं, मगर आपको लिखकर कैसे भी क्या है ग्रुप में सेंड करना है आप, ठीक है। जी, तमाम तालिबात, कितनी तालिबात हाजिर हैं आज? जी मैम। कितने 8 तालिबात है ना, क्या है वो, क्या है पूरे क्या है होमवर्क अपना अपना जो भी आपको बताया गया, सफा नंबर 21, 22 और 23 इन तमाम को क्या है लिखकर सेंड करना है, और अच्छी तरीके से जो तरीके से आज आपको पढ़ाया गया है वो तरीके को अच्छा समझना है, फिर आपसे सवाल भी किए जाएंगे, ठीक है। जी मैम। ठीक है, किसी को कुछ सवाल है? अभी हमारे पास 9 मिनट बाकी हैं, बोलिए। जो सबक पढ़ाया गया उसमें कुछ सवाल है? किसी को कुछ सवाल नहीं है? ये जो पढ़े आज हम सबक, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है आप लोगों को
ये क्या है, वाव को पेश अगर आ भी गया तो उसको कौन से तरीके से हम पढ़ रहे हैं, मारूफ तरीके से पढ़े, जैसे सूट बूट लूट, इस तरह से पढ़ेंगे, सूट बूट लूट कूट। अब ये जो सूट है, मेरा डैश ला दो, मतलब क्या है, सूट ला दो। दे रहे, हाँ, मेरा डैश ला दो मतलब सूट ला दो। मेरा सूट ला दो। इस तरह का है, आप है, उस मिर्ची को डैश करो, डैश दो मतलब उस मिर्ची को डैश दो। ये है आप लोगों को, ये बोल रही हूँ मैं। तो ये लफ्ज लगाएंगे, इसको क्या बोलकर लगाएंगे, कूट दो। हाँ, कूट दो। ठीक है, समझ में आ रही बात, कूट दो, क्या बोलेंगे इसको, कूट दो। अब देखिए, उस चॉकलेट को डैश दो मतलब थूक दो। थूक दो, थूक दो, थूक दो। बारकल्ला, अच्छा बोले आप। इसी तरह क्या है, अब देखिए, उस लड़के को डैश लगी है, भूख लगी है। भूख लगी है, तो भूख लगी है। हम ये भूख जो बोलते हैं वो कौन से तरीके से पढ़े, मारूफ तरीके से, वो के ऊपर पेश लगा हुआ है, और वो क्या है, हम उसको किस अंदाज से पढ़ रहे हैं, मारूफ तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन से अंदाज से पढ़े, मारूफ तरीके से। तो मारूफ तरीके से किस तरह पढ़ा जाता है, अगर आपको उर्दू में पूछा जाए तो आप फौरन आपकी जुबान पर ये आना चाहिए कि सूट बूट कूट, इसी तरह थूक भूख। आपको ये मिसालें चंद क्या है, आपके जहन में रहना जरूरी है, जैसे भूल फूल धूल। तो ये भी क्या है, आप अब देखो, मुझसे एक बहुत बड़ी डैश हो गई, भूल हो गई। भूल होगी। अच्छा, जी। गुलाब का डैश खूबसूरत है, गुलाब का डैश, गुलाब का फूल। फूल फूल। बारकल्लाह, माशाल्लाह, अच्छा बोले आप लोग। और गाड़ी की डैश उड़ रही है, धूल। धूल। ये जो धूल फूल और भूल थूक भूख, ये कौन से तरीके से पढ़ रहे हैं हम इसको, मारूफ मारूफ तरीके से, इस तरह से क्या है पढ़ा जा रहा है। अब उसके बाद देखिए, उस पहाड़ का नाम डैश है, बड़ा। तूर। तूर है। तूर है, हाँ। उसके बाद जो है ना, हैदराबाद डैश है, दूर है। दूर जी, है। बारकल्लाह, दूर है। दूर है, हाँ। क़यामत के दिन 2 डैश फूके जाएंगे, सूर। सूर फूके जाएंगे। जी, इसी तरह, बारकल्लाह। तो इस तरह से हमें क्या है पढ़ना है। आप इसी तरह देखिए, आपको मैं बताइए, ये देखिए, फरिश्ते डैश से पैदा किए गए हैं, नूर। नूर से। नूर से पैदा किए गए हैं। इसी तरह आप देखिए, कुतुब मीनार का मीनार बहुत डैश है, तवील लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसी तरह क्या है, तूल है भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, वही है। अब इसके इसी तरह आपको सामने क्या है, पूरे मिसालें आपको वाज़ेह हो गई। अब समझ में आ गया आप लोगों को, जी समझ में आया। जी जी। जो मैंने हमारी नौकरी वाव को पेश लगाना पड़ता है क्या बाजी? ये वाव को पेश नहीं भी लगाए तो कुछ भी नहीं, मतलब हम पढ़ने के लिए यहाँ पर तालिबात को समझ में आने के लिए इस तरह से लगाया गया है, ठीक है। अब जैसे देखिए, आम अल्फाज और चाहे आम जुमलों में जब हम पढ़ते हैं किताबों में, तो वहां पर लगावा नहीं मौजूद होता। तो जो तालिबात उर्दू शुरू में सीखने वाली रहती है, तो उनको समझाने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। तो इसीलिए ये जो है ना, ये हमारे समझने के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो है ना, उल्टा पेश की तरह यहाँ पर मौजूद है। तो इसको क्या है, मारूफ तरीके से इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है, लगाने की जरूरत भी नहीं है।
अब किसी को समझने के लिए कि ये मारूफ तरीके से है तो आप इस तरह क्या है लगा भी सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप ये जो है ना, और एक आपको मैं बताई मजहूल, तो ये मजहूल में भी देखे आप यहाँ पर सादा पेश है, यहाँ पर मजहूल में, तो सिर्फ फर्क करने के लिए आपको क्या है इस तरह से बताया गया है। ठीक है, जी मैम। ठीक है। और कुछ सवाल है आप लोगों को? जी, क्लास के खत्म होने का वक्त हो चुका है। तो मैम एक सवाल है, पूछिए। एक्चुअली फ्राइडे के दिन जो है मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी, तो क्या मुझे फिर से एक्सेस मिल सकता है? वो लिंक के बारे में मैं इंशाल्लाह मैं आप कौन है कि आप मेरे पर्सनल नंबर पे मतलब मैसेज करिए, इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है, ओके ठीक है मैम। आपका नाम क्या है? सईदा फरजाना। जी ठीक है, आप बात करिए, इंशाल्लाह मैं बोलती हूँ। ठीक है, ओके ठीक है मैम। ठीक है। क्लास के अख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा सुभानक अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अतूबु इलैक। नहीं,